Good evening everyone, myself Himanshu Chauhan, Physics Faculty. Today we will study motion in one dimension. Motion in one dimension. So first of all, let us try to understand what actually motion is. Motion. If I say that position of a body is changing with respect to time, then that body is said to be in motion. That means that body is mobile. Like for example, there is a body at point A. मैं कहता हूँ ये body A है, ये body है जो कि इस point A पर थी at some time T1. After some time, this body changes its position. At time T2, it reaches point B. Then this body is said to be in motion, or this body is moving. To define motion, first of all, we require a reference. Reference point is actually that point from where we observe this motion. What I mean to say is, like for example, if I say that I am measuring the position of this body with respect to this origin, this is actually nothing but an xy coordinate system. Reference here would be the origin, and which is actually the 0, 0 coordinate of xy coordinate. If I say that at some time t, body was at x, y, then this x, y is actually the position of the body at that time t, which I am measuring from the origin. So to define a motion, we require this reference point. If this position changes with time, after some time body from A comes to point B from this reference point, then this body would be said to be in motion. And this R vector is called the position vector. That is, through our reference system, first of all, we can define position at any time t. Position at time t was r x, y. This r is nothing but the distance of the body from the origin at time t. So, continuing with this, the quantity that now we define is distance. Let us take an example. If I say a body was initially at point A and after some time it reaches B via some path like this through C. एक body पहले A पर थी, वो B पर चली गई इस AC की path को follow करते हुए. Then the actual path length of this path, that is A, C, B, the path length, actual path length is the distance covered. This is the distance covered. Distance is a scalar quantity. It is scalar. What it actually means is कि ये जो body, for example मैं कहता हूँ ये यहाँ से यहाँ आने में, it covered a distance of 2 kilometer. तो इस 2 kilometer value की कोई direction नहीं होगी. It is only having magnitude. That is why distance is actually a scalar quantity. The SI unit of distance is meter. Usually written in the form of m. छोटी क्लासेस तक आप डिस्टेंस को d लिखते थे, लेकिन अब से 11th क्लास से और आगे आप डिस्टेंस को जनरली s के फॉर्म में लिखेंगे. s without a vector sign. Next quantity that now we have to define is displacement. Displacement. How do we define displacement? इसी एग्जाम्पल पे वापस आते हैं. Starting from the initial to the final position, जो path length आएगी directly initial और final point के बीच में जो direct distance आ रहा है, that distance is nothing but the displacement. यानी कि displacement in this example would be the actual path length AB.
this displacement is denoted by s vector. What it means is that actually it is a distance. In magnitude wise, displacement will have value of meter only. Its unit SI unit again would be in meter, but its direction would be from initial point to final point. Initial to final position. This would be the direction. What it means that displacement में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट तक। तो अगर मैं कहता हूं इस वाले एग्जांपल में आप देखो तो डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट की कम है, और ये इन जनरल ट्रू भी होता है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या तो डिस्टेंस से कम होगा या डिस्टेंस के ही इक्वल होगा। यानी कि जब कोई बॉडी चलेगी किसी भी दो पॉइंट के बीच में, अगर मैं कहता हूं ए से लेके बी के बीच में, बॉडी के पास एक तरीका है डायरेक्टली ऐसे पहुंचने का, या एक तरीका है आप कह लो ऐसे घूम के पहुंचने का, और एक तरीका है कुछ इस तरीके से घूम के पहुंचने का। इन ऑल द केसेस दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। दैट मींस displacement would definitely be a constant value, however the distance will depend upon the actual path taken. अगर मैं कहता हूं बॉडी वन डायमेंशन में मूव कर रही है, वन डायमेंशन कहने का मतलब है मूविंग ओनली इन स्ट्रेट लाइन, या ओनली वन एक्सिस, at that time the magnitude of distance becomes equal to magnitude of displacement. Displacement being a vector quantity has direction. It could be either positive or negative. Displacement can be positive, can be negative, can be zero. However, distance can never be negative. Never be negative. Distance कभी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं कहता हूँ एक बॉडी यहाँ थी, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई थ्रू पाथ सी, मतलब डेफिनेटली उसने कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पाथ लेंथ कवर की होगी, फॉर एग्जांपल 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, दैट डिस्टेंस वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, लेकिन अगर मैं कहता हूँ बॉडी ए से बी तक गई है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है 1 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट AB is 1 meter, then the direction of this displacement would be from A to B. अब मैं कहता हूं बॉडी B से वापस A आ गई, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो -1 मीटर होगी। Why it is negative? Because this time B would be the initial position and A would be the final position. यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो उल्टी होगी, पहले से उल्टी होगी, तो इस केस में डायरेक्शन वुड बी फ्रॉम B to A. That's why displacement can be either positive, negative or zero. Zero कब हो सकती है? अगर मैं कहता हूं ये एक बॉडी है, ये t इक्वल टू 0 सेकेंड पे भी यही थी, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे भी यही थी, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी यही थी, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी यही थी, यानी कि ये बॉडी रेस्ट पर है, ये मूव ही नहीं कर रही। अगर ये मूव ही नहीं कर रही तो उसने कोई डिस्टेंस भी कवर नहीं किया, यानी कि when body is at rest, distance would definitely be zero. All right. अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये सर्कुलर ट्रैक है, बॉडी ने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ए से वो बी गई, बी से फिर वो सी गई, सी से डी गई, डी से वापस ए पर आ गई, यानी कि ये ए पॉइंट उसकी इनिशियल पोजीशन थी और फाइनली आके भी वो ये रुक गई, यानी कि इसकी फाइनल पोजीशन भी हुई। बोथ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर दी पॉइंट ए। However, the body is moving in circular path. अब इस केस में अगर मैं कहता हूँ इस पाथ का रेडियस है r, तो बॉडी ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है क्योंकि उसने एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल की है। The magnitude of that path length is nothing but the circumference of this circle. That means distance traveled in this case is not zero. However, it is equal to circumference 2 pi r। अब अगर इस केस में
बात करें तो बॉडी रेस्ट पर तो है नहीं, स्टेशनरी नहीं है क्योंकि इसकी पोजीशन हर पॉइंट पर चेंज हुई है, उसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल किया है। व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? बॉडी की इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है। डिस्प्लेसमेंट हमने डिफाइन किया था द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बीच में कोई पाथ लेंथ है ही नहीं, तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज 0। अगर एक बॉडी नहीं चल रही तो डेफिनेटली उसका डिस्टेंस 0 होगा और उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहेगी, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली विल बी 0 जब बॉडी रेस्ट पर है। लेकिन बॉडी अगर इस तरीके से चले कि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करे तो उस केस में डिस्टेंस नॉन 0 होगा और डिस्टेंस की वैल्यू होगी एक्चुअल पाथ लेंथ के इक्वल। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। यानी कि अगर बॉडी चल रही है तो इन दैट केस डिस्टेंस माइट नॉट बी 0, हाउएवर डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन कहता है कि एक टॉय कार है, देयर इज ए स्मॉल टॉय कार। दिस टॉय कार मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ for 20 meter and after some time it starts from A, reaches to B, and after some time it takes a right turn, and reaches point C which is 30 meter, take it to be 40 meter, 40 meter towards north, then right turn, and from B to C travels 30 meter. Now in this question, what would be the magnitude of distance and displacement? इस केस में डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट। बॉडी पहले ए से दी गई, 30 मीटर यहाँ ट्रैवल किया, 40 मीटर यहाँ ट्रैवल किया, फिर बी से सी गई तो 30 मीटर ट्रैवल किया, यानी कि एक्चुअल ए बी सी जाने में जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर हुई वो 40 प्लस 30 की गई। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 मीटर। ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन और ये बॉडी की फाइनल पोजीशन। तो इस केस में जो पाथ लेंथ आएगी बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, डायरेक्टली जो लाइन जॉइनिंग होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, दिस लाइन विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। अगर ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है और ये 40 मीटर है, 30 मीटर है, तो पाइथागोरस से हमें क्या मिलेगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का अंडर व्हिच इज 50 मीटर। दिस AC इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बॉडी A से लेकर C तक जाने में 50 मीटर डिस्प्लेस हुई। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट? फ्रॉम A टू C। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी फ्रॉम A टू C। Displacement of 50 meter from A to C. Okay. अब अगली क्वांटिटी डिफाइन करते हैं which is average speed. Average speed. छोटी क्लासेस में आप स्पीड को S लिखते थे, डिस्टेंस को D लिखते थे, लेकिन अब से आप स्पीड को V लिखेंगे। एवरेज स्पीड आपकी इफेक्टिव स्पीड होती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक ट्रेन चलनी शुरू हुई, एक सिटी से दूसरी सिटी तक गई, तो इस दौरान वो इनिशियली पहले रेस्ट करोगी 0 मीटर पर सेकंड में, फिर उसके बाद वो थोड़ी एक्सेलरेट होगी तो इट कैन अटेन द स्पीड ऑफ फॉर एग्जांपल से 10 मीटर पर सेकंड, देन 20, देन 30 एंड समवेयर इट विल अगेन स्टॉप, बीच में कोई स्टेशन आएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगी। तो इन टोटल यू कैन से दैट स्पीड ऑफ दैट बॉडी इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें जो स्पीडोमीटर होता है, वो स्पीडोमीटर आपको क्या बताता है? स्पीड बताता है कार की उस इंस्टेंट। अब जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये ट्रेन A से B तक जाने में हर इंस्टेंट पर अपनी स्पीड चेंज करेगी, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? दिस एवरेज स्पीड इज एक्चुअली द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्पीड। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्पीड इन द सेंस कि इफ गोइंग फ्रॉम A to B the total distance traveled is S and total time taken is T, then in that case average
V average would be S by T. या ये कहिए total distance upon total time taken. This would be the average speed. If I say